میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ہاں میں دیکھ رہا ہوں تو آپ لوگ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بتا دوں میں بھی ایکس مسلم ہوں، اور جو ہے مجھ کو لائک مجھ کو جو ہے اسلام چھوڑے ہوئے 10 ایئرس ہو چکے ٹوٹل، ہے نا۔ اور تو یہ میں وہی دیکھ رہا تھا، میں تو سنتا تھا کہ محمد اتنے اچھے انسان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جب سے آپ کی اسٹریم دیکھی تو میری کافی آنکھیں کھل گئی، مطلب یہ سب دیکھ کے۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا سب کچھ ہے غلط اسلام میں۔ میں تو سوچتا تھا کہ یہ بہت اچھائی پھیلاتا ہے یہ ریلیجن، ہے نا۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا سر بھائی آپ جان، کی آپ کی طرف بات کوئی فین وغیرہ سمجھنے چالو ہے میں کیا؟ آپ کی میری طرف کوئی فین وغیرہ چالو ہے کیا؟ تو میری طرف جو ہے ہاں اوپر والا فین چل رہا ہے۔ یار آپ کی چکر میں مجھے میرا فین سلو کر کے آنا پڑا ہے، پھر بھی آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے۔ ہاں ذرا ہیلو، اپنا اب صحیح فین آ رہی ہے؟ سلو کر دیں۔ اب صحیح آ رہی ہے؟ ارے جب بولتے ہو تو بیچ میں پھر ختم ہو جاتی ہے آپ کی آواز۔ اچھا، یہاں پہ پتہ نہیں کہ مائک کی والیوم کم ہو جاتی ہے نا۔ اچھا تو اب صحیح آ رہی۔ ہاں تو میں نے آپ لوگ کو جو ہے دیکھا تھا، آپ لوگ کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگ کا امپیکٹ بہت اچھا ہے گا جو سر، نظر آپ آ رہا ہے۔ نے کہا کہ آپ نے 10 سال پہلے اسلام چھوڑا ہے، ہاں رائٹ؟ 10 ایئرس ہو گئے، ایگزیکٹلی، یس۔ اس سے پہلے آپ کیا پکے والے مسلمان تھے، کیسے والے تھے؟ پکے تھے، فل پکے تھے، ایک دم فل پکے۔ پکے تھے، نمازیں ہاں، ومازیں پڑھتے تھے؟ اس ٹائم نمازیں پڑھتے تھے ہم، اور کیا بولتے ہیں مجھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جو خطبہ، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو خطبہ نہیں ہوتا جو لے جاتے ہیں مسجد میں اور وہ دعویٰ دیتے، وہ سب بھی کرتے تھے۔ تو وہ سب کرتے تھے۔ تو آیت مجھے لگ بھگ الکرسی آیت الکرسی سنا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، آیت الکرسی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ جی، درود ابراہیمی یاد ہے؟ درود ابراہیم مجھے اتنا یاد نہیں ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ ویسے آپ ہم کو بتا دی شروعات کیسی ہوتی ہے، اس کی شروعات اللہم کیا؟ صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ یہی ہے نا کچھ جی۔ بھائی یہ بتائیے، تیمم میں کلی کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ تیمم میں کلی 3 دفعہ کرتے ہیں۔ ناک دھوتے ہیں، اور کان دھوتے ہیں، اور پیروں کو صاف کرتے ہیں، انگلیوں کو، اور انگوٹھے سے کانوں کے چاروں طرف پھیرتے ہیں۔ یہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، مجھ کو نماز نہیں، صرف کلی کا میں نے پوچھا تھا، 3 تیمم بار میں کلی کتنی 3 دفعہ؟ بار 3 دفعہ تیمم کی بات کرتے ہیں کہ وضو کی بات؟ تیمم کی۔ تیمم تو شاید مٹی سے بھی ہو جاتا ہے نا۔ زبردست، چلیے آپ نے صحیح کہا، چلیے درست ہے پاس بھائی، ہو گئے مٹی سے ہمارے۔ ہوتا ہے اس لیے ہاں، ہاں میں بھی وہی کہنے والا تھا بھائی صاحب۔ میں کہنے، ارے مجھ کو یاد آ گیا یہ میں تو ویسے تو میں اپنی زیادہ جانکاری دے نہیں سکتا، ہے نا، جی، کہ میں ہو کون، کہاں سے ہوں، یہ میرا 10 نام، سال یہ پہلے سب۔ تو انٹرنیٹ تو اتنا سوشل ہاں، میڈیا میں نہیں یہ آپ تھا، نے صحیح تو کہا، کیا ایسا ہو یہ گیا سب تھا کہ آپ نے چھوڑ دیا؟ کیونکہ تب تو ایکچولی میں جانتا بھی نہیں تھا ایکس مسلم ہوتے بھی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ میں ہی اکیلا ہوں پوری دنیا میں، اور جو ہے تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی تھی اس میں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلی چیز تو میں پریپیئرڈ نہیں تھا جب میں یہاں پہ آیا ہوں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ایکس مسلم بنا تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی کہ یار سب لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں دنیا میں، سب لوگ برابر سے ایک جیسے دکھتے ہیں، سب ایک جیسا کھاتے ہیں، تو سب سے مسلمانی کیوں جنت میں جائیں گے، اور یہ لوگ وہ صرف، اور یہ سب جتنے بھی نان مومن ہیں، جتنے بھی وہ بھی تو اچھے ہیں، وہ لوگ کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں، صرف اس وجہ سے۔ یہ مجھے چیز دماغ میں میرے کھٹکتی تھی کہ جو ہے ایک تو مجھے انفیئر لگتا تھا یہ ریلیجن، ہے نا، ہاں اور دوسری چیز یہ تھی کہ ایک تو انفیئر لگتا تھا، دوسری یہ چیز تھی کہ یار اتنے اچھے اچھے مہان لوگ آئے چلے گئے، جیسے آئنسٹائن ہو گئے، یہ سب ہو گئے، جن کو ایمان کا ہم بھی نہیں جانتے تھے، تو وہ سب لوگ جو ہے جہنم میں چلیں گے، اور یہ سب اتنے جو ہے اتنی جو ہے کیا بولتے ہیں گناہ کرے جا رہے ہیں، لونڈیے بنا رہے جو کہ ہم نے آپ کے اسکیم میں سنا، اور جو ہے یہ سب کر رہے ہیں،
तो ये सब पूरी जिंदगी जो है गुनाह करने के बाद एक तौबा बोलेंगे या कोई ऐसी दुरूद पढ़ लेंगे जिससे पेड़ों के जितने पत्ते हैं वो सब झड़ जाएंगे, इतने गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आखिर में ये बोल के जन्नत चले जाएंगे। और सब जितने नॉन मोमिन है वो जो है जितना अच्छा काम करके इंसानियत के लिए करके गए, जो शहीद होके गए हैं, वो जन्नत में जाएंगे, वो जहन्नुम में जाएंगे। ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती इसमें। एक चीज़ तो मुझे ये बहुत अनफेयर लगता है कि यार 10 साल पहले ही आपको ये समझ में आ गया था? ये बिल्कुल समझ में आ गया था। ये तो मैं अपने घर वाले सुनता रहता था। वही तो 10 साल पहले। और हाँ, मैं 10 साल पहले चिल्ला इल्ला वगैरह भी लगाया था ना मैंने। हाँ, उसमें भी समझ में आया था। 10 साल मैंने 3 दिन का चिल्ला लगाया, 40 दिन का लगाया, और जब मैंने 40 दिन का जब चिल्ला लगाया उसी के बाद मैंने जो है इस्लाम छोड़ा था। अरे वाह, समझ रहे? ये तो जबरदस्त है यार, जल्दी आप निकल गए इस जंजाल से। खुश है और अभी? क्या, अरे बहुत खुश है सर, क्या बताए। कम से कम जो है अरे कम से कम यार ये लोग जो दिमागी अपंग लोग हैं जैसे आप लोग कहते हैं, उससे तो बाहर निकले। क्योंकि उस टाइम हम साइंस पे भी बिलीव करते थे, है ना, और इंसानियत पे भी बिलीव करते थे। क्योंकि हम इंसानियत को जो है प्राइमरी रिलीजन मानते हैं, इंसानियत को हम जो सबसे ऊंचा रिलीजन मानते हैं, उसके बाद जो आता है वो आता है, तो हम ये मानते थे, है ना। तो इंसानियत में ये है कि आपको पहले प्राइमरी जो है इसमें ये है कि आपका ईमान है, फिर उसके बाद जो है नेशन है या इंसानियत है, फिर आता है ये। इसमें इंसानियत का मुझे कोई स्कोप तो नज़र नहीं आता। क्योंकि काफिर नॉन मोमिन को लोग काफिर कहते थे कि तुम्हें तो जहन्नुम को सुलगाने के लिए बनाया गया लकड़ी की तरह, चाहे वो जितना जो है कर ले। और मोमिन बस ये दुआ पढ़ेंगे और जो है 2-3 रकात मतलब 4-5 दुआएं पढ़ेंगे और तौबा करेंगे, जन्नत चले जाएंगे, और उनको 72 मुँह मिल जाएगी, और वही डिंगी डिंगी करेंगे जैसे जैसे आप लोग होते हैं। और ये लोग जो है इतने अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में, तो वो सब जहन्नुम जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है ये है कि भाई पहली चीज़ तो जो है अल्लाह ताला जब उतना ही जो है अपने लोगों से क्या बोलते हैं अपने बंदों से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर यार ये सब कर क्यों रहा है, ये नहीं समझ में आता, दुनिया ही में क्यों कर रहा है। तो क्या बोलते हैं इतना गलत हो रहा है, रेप हो रहा है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे किसी से कि जो है रेप करवा क्यों रहा है, चाहे तो रोक भी सकता है ना, उसके बाद तो इल्मे गैब है कि नहीं। तो जो रेप हो रहा है उसको रुकवा भी सकता है, लेकिन वो नहीं रुकता है क्योंकि वो आजमा रहा है। बताइए, लोगों के ऊपर गलत हो रहा है, ये सब क्राइम हो रहा है, ये सब आजमाने के लिए कर रहा है सबको, और कह रहा है कि जो उसका जो अर्जा है वो जो है जन्नत में मिल जाएगा अगर वो आजमाइश पूरी हो जाती है। और क्या बोलते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं जिसको मुझे गलत लगी। और अच्छा मैं जो है मैं एक क्वेश्चन था, मैं अपनी अम्मी से मैंने आज पूछा, मेरे दिमाग में डाउट आया था कि यार कि मेरे दिमाग में ये डाउट आया था कि जो है क्या बोलते हैं कि ये मोमिन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब क्या बोलते हैं जब कोई गुनाह करता है तो क्या कह रहे थे ना, हाँ तो क्या बोलते हैं भाई भूल जाते बीच बीच में। अरे हाँ वो सॉरी मेरा जो है दरअसल गला सूख रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे पहली बार आए ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं कोई नहीं हाँ वही तो मेरे ये डाउट में था कि जो है क्या बोलते हैं कि यार जब कोई मोमिन गलत काम करता है तो उसके साथ कुछ गलत होता है, कोई जो नॉन मुस्लिम है उसके साथ गलत होता है, तो वो बोलते हैं कि उसके ऊपर अजाब आया हुआ है ना। हाँ। और क्या बोलते हैं, और जब कोई मुस्लिम जो है कोई गलत करता है तो वो उसमें ये आता है कि वो आजमाइश में उसके साथ कुछ गलत होता है, तो वो आजमाइश में, और जो नॉन मुस्लिम होता है वो गलत करता है तो वो कह देते हैं कि जो है उसके ऊपर अजाब आया। और मतलब ये क्या दोगलापन है? ये बिल्कुल दोगलापन है, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। ये बिल्कुल दोगलापन है मोमिनों का कि भाई अगर मोमिन पे कुछ परेशानी आई तो उसको वो टेस्ट मान हाँ वो
आजमाइश कह देंगे, और काफिरों के ऊपर कुछ आया तो उसको कह देंगे कि अल्लाह का अजाब। अजाब है। इतने खतरनाक होते हैं ना ये, कि भाई अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी नया कॉन्सेप्ट निकाल दो, कुछ भी बोंगी मार दो। हाँ, तो मैंने ये अपनी अम्मी से क्वेश्चन पूछा कि जो है ये ऐसा क्यों है? तो यार कैसे पता कैसे चलेगा कि ये आजमाइश है कि ये अजाब है? तो मेरी अम्मी ने पता क्या जवाब दिया, वो कह रही है कि अगर वो जो है इबादत करता होगा, वो नमाजें पढ़ता होगा, तो वो जो है वो आजमाइश में, अगर उसके साथ गलत होगा। अगर वो इबादत नहीं करता है, वो खुदा को नहीं मानता है, वो दूसरे खुदा को मानता है, तो वो उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो ये इस बात का एविडेंस है कि वो अजाब में। ये उन्होंने जवाब दिया। समझ में आया? ये इनका जो है पूरी एनालॉजी है इस्लाम की, कि अगर वो मुस्लिम है और वो अगर उसके साथ गलत हो रहा है और वो इबादत कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो आजमाइश में है कि नहीं। और वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना जो है सर झुका रहा है अल्लाह के आगे, वो क्या जो है मोमिन वाली चीज़ें कर रहा है, उस सही पर बात। डिपेंड करता है कि आजमाइश। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, लोगों गरीबों को खाना खिला रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है, मतलब पूरी इंसानियत के लिए पूरी अपनी जान कुर्बान कर दे रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो अजाब में है, क्योंकि वो नॉन मुमिन है और वो अल्लाह को नहीं मानता। इस बेस पे उनका जजमेंट चलता है, न कि अच्छाई और बुराई के बेस पे, गुड सिन और बैड सिन के ऊपर पूरा बिल्कुल जजमेंट है। हाँ, वही मैं बिल्कुल। कहना चाह रहा अच्छा, हूँ। अपने क्या नाम है आपका, रेजा हाँ साहब? हाँ, हाँ, रेजा साहब, ये बताइए कि ये 10 साल से आप मुर्तद है, तो किसी को पता है या छिपे हुए है? एक्चुअली सर को जो मुद्दत है वो हाँ, किसी को नहीं पता। और जहाँ तक कि जब कॉलेज तक में जब मेरी अटेंडेंस लगती थी, तो अरे उसमें भी किसी को नहीं भाई, पता। हाँ अरे अपना ओरिजिनल नाम वो सब ना बताओ भाई। हाँ, वही मैं बता तो मतलब किसी को पता ही नहीं, आप छुपे हुए एक्स मुस्लिम हो? रहा हूँ। हाँ सुबह, हाँ हाँ, जब ये एक चीज़ था कि कुछ लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया, क्योंकि जब मैं लॉकडाउन में नमाजें नहीं जा रहा था, तो कुछ लोगों को हो गया हो कि भाई इसका ईमान टूट चुका है। तो ये नहीं पता कि एक मुस्लिम है नहीं, वो यही समझ रहे हो सकता है कि मेरा ईमान टूट चुका है, ईमान कमज़ोर हाँ, हो चुका है, इस वजह से, है ना। मैंने ये तो किसी को जाहिर किया नहीं कि मैं एक मुस्लिम हूँ, है ना। घर पे भी पता है तो क्या, नहीं पता है? नहीं पता है चाचा, किसी को नहीं पता। तो फिर आगे की लाइफ आप कैसे गुजारोगे जब आपकी शादी विदी होगी? नहीं नहीं नहीं, तो मैं देखिए, मैं किसी से नहीं डरता भाई। देखिए, पहली चीज़ तो मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट है और ये शरिया यहाँ पे लागू नहीं है, तो मुझे डर इस बात का है नहीं। और मैं जब शादी वगैरह करूँगा तो इंडिपेंडेंट ही करूँगा, और जो है रहूँगा भी इंडिपेंडेंट। हाँ, तो मुझे भाई फॉर्मेलिटी करने के लिए हाँ ये सब कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा हाँ, दुआ मांग ली साथ में, या ये कर दिया, कहीं चले गए, कल्चरल जो इवेंट होता है उसमें, जो मुसलमानों, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, और लेकिन वरना जब, आपकी एटलीस्ट जो आने वाली जनरेशन है, कम से कम वो मुस्लिम नहीं रहेगी। हाँ ये तो बात है, वो तो कम से कम ये सब नहीं करेगी, वो कम से कम 4 शादियाँ नहीं करेगी, अपनी वाइफ को कैद में नहीं रखेगी, ये सब जो भी आप बताते हैं, है ना। वाह भाई और वाह, सलूट है भाई, सलूट है हमारे रेजा साहब को जो है, ये सलूट है हमारे तरफ से। और जितने लोग देख रहे हैं, रेजा हाँ, साहब के लिए एक गुलाब का फूल जरूर भेजे यार। हम चाहते हैं कि जैसे रेजा साहब ने ये और ठाना है कि वो, जी, एक चीज़ और है, एक चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो ये एक चीज़ समझ नहीं आई, ये लोग जिजिया क्यों लेते हैं? जिजिया का क्या जिक्र है? हमने ये सुना था कि ये लोग टैक्स लेते हैं मुबिन वन मुबिन से। अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट, जो यहाँ के लोग, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है इंसान लोगों से, तो वो उस टैक्स का उन्हीं को ही फायदा देने के लिए लेती है, कि उनके लिए रोड्स बनाती, फैसिलिटी देती है, एजुकेशन, स्कूल। तो इन लोग का टैक्स का चक्कर है कि अगर वो नॉन मुमिन है अच्छा, तो ये मैं उनको। आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, आप ये हाँ, बताओ कि आज तक आपने कोई भी ऐसी कंट्री देखी है जो आपकी आइडियोलॉजी, आपके फेथ या आपके रिलीजन के बेसिस पे आपसे टैक्स लेती हो? हाँ, कसम से नहीं देखी मैंने हाँ, तो ऐसी कोई मतलब ये है, आइडियोलॉजी। और दूसरी चीज, फायदा किसका हो रहा है यार नॉन मुस्लिम नहीं से, नहीं, वो क्योंकि उनका ही। बात हाँ समझो, पहले बात समझो रेजा हाँ साहब, बात हाँ, समझो मैं क्या कहना हाँ चाह रहा हूँ। समझ ही सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टैक्स कभी भी रिलीजन के बेसिस पे, फेथ के बेसिस पे नहीं होता है। हाँ सही टैक्स बात कभी भी इनकम के बेसिस पे होता है। है। हाँ ठीक है सही कह, है सही ना?
यहाँ पे ये जो मोमिन हजरात है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसको टैक्स का नाम दे दिया। ये टैक्स सही नहीं बात है, ये हफ्ता वसूली है। हाँ सही हफ्ता बात वसूली इस तरीके से है, क्योंकि आप देखिए कि जो तफसीर लिखने वाले हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भाई ये जिजिया जो है ये जजा वर्ड से निकला हुआ है, जी ठीक है। ये इसलिए है कि भाई हम आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह ने क्या सिखा के गया कि आपने 3 ऑप्शन देना है, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या आप जिजिया दो, या आप जंग लड़ो। तो चूंकि आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो और हम आपकी जान बख्श रहे हैं, इस वजह से इसके बदले में हम आपसे जिजिया ले रहे हैं। और यही चीज इन्होंने लौंडियों पे भी लागू किया कि हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, इस वजह से हम तुम्हारा जिंदगी भर रेप करके वसूलेंगे तुमसे। लौंडियों का जो इन्होंने किया, शायद ये भी इनका यही साइकोलॉजी है इसके पीछे। हाँ, तो आप समझिए, तो जिजिया को टैक्स कभी नहीं बोलो। हाँ सही बात है, ये तो वसूली होगी, क्योंकि उनका गुनाह ये है कि वो नॉन मुस्लिम है। हाँ, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, हाँ, तो आप चूंकि आपको और जिंदा छोड़ रहे हैं तो इसके बदले आपको जो है वो हफ्ता वसूली देना पड़ेगा। हाँ, और जो रियल टैक्स होता है, अच्छा जो रियल टैक्स होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो है, जो फ्री में हम लोग को जैसे रोड यूज़ कर रहे हैं, जो फ्री में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बैंक अकाउंट हम लोग का है, तो उनकी सैलरी पे करने के लिए जो सरकारी सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है वही टैक्स का, और हम लोग को वही सुविधा जो हम लोग फ्री में यूज़ कर रहे हैं वो वापस रिटर्न में देने के लिए होता है। आई थिंक वो रिटर्न में वापस मिलता है टैक्स, जो भी जीएसटी लगता है, तो वो भी हम लोग को फैसिलिटी के जरिए, या जो भी हम लोग फ्री का सुविधा इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो वो उस चीज़ का लगता है, ना कि वसूलने का होता है। तो जिजिया में बहुत फर्क है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और रेजा साहब, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। हाँ, और आपने अपनी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको वंस अगेन इस जंजाल से पहले निकलने के लिए, और खुश रहें और खुद भी अच्छे से रहें, दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर जी। और मेरे कोई क्वेश्चन और पॉइंट होगा मैं ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा पूछूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। ओके।